इज द लास्ट डे। विपिन जी, खूब खूब अनुमोदना। आपने एकदम ऑलमोस्ट मोक्ष तक पहुंचा दिया है। आज हम सब लोग मोक्ष की यात्रा पूरी करेंगे, लगता है मोक्ष में आ जाएंगे। सो आपकी खूब खूब अनुमोदना विपिन जी। आज के प्रवचन के स्पॉन्सरर है सुरील लाखानी, सुरेखा आंटी, then Jitu uncle and Niru auntie from Atlanta, Georgia. They have sponsored 3 lectures. Mahendra Bhai and Hina Ben Sa. We also have one anonymous sponsor. And as you all know, what a coincidence. Today, exact today, 6 years ago, we lost our one of the Swadhyay Premi auntie, Pallavi auntie, in her memory, Bhupendra Uncle Deliwala, who sponsored Saturday, Sunday, and Monday, today's last 3 lecture. Khub Khub Anumodna, all the sponsorer, whoever took the lab in this Pravachan series and sponsored. Thank you, Anumodna, for them. Because of your support, the son can do this various activity. Also, I would like to take a moment to do Anumodna of a few other individuals who supported this Pravachan series and actually put together the mainly Viral Doshi and Sital Doshi, their family. He and Sital Ben took care of the everything. Contacted Vipinji, make it happen for this week for us. Drop off, pick up from the airport, and the logistic, and taking care of all this 5 day series and their 6 days of the staying. So Kukubanubudna, Viral, and Sital. And I'm very happy to announce that they also given so many good Gyan's value of their kids. So their daughter, Isa Doshi, also donated $101 towards this Pravachan series. Kubkum Anumodna Isha. And also Lata Auntie, who is also our scholar committee member. Anumodna to Sasikant Uncle and Lata Auntie, who helped Viral Bhai and Shital on this Vipinji's logistic. Also, they arrange last minute Surut Panchami Puja and give us the opportunity to get more knowledge from the Vipinji. So, Anumodna of that. Also, Anumodna to Suril and Stuti Lakhani, who help Lata Aunty and Viral to take care of the logistic of the Vipinji. Last but not the least, how can I forget our secretary, Anand Ali? He is the one who was sending timely communication, reminding of all these Pravachan series timing and all that, taking care of the Zoom call. Even though over the weekend he had a few guests at his house, and he still managed and make sure that he turned on the Zoom on time so we don't have to wait for the this Gnan Stotra. Also, thank you so much for thank you, Anand, and thank you so much for all the attendees. Without attendees, we cannot do much activity. So thank you all attendees for this Pravachan series. Last, Vipin ji, हमारा से आपकी ये प्रवचन यात्रा में, आपकी यहाँ हमारी यहाँ की स्टे में कोई भी जान के अनजान से आपका ये हमारा कोई विवेक अविवेक हुआ है तो संघ की ओर से मैं आपको मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ. तो प्लीज फॉरगिव अस. मिच्छामि दुक्कड़म. फ्लोर इज योर विपिन जी. गो अहेड. नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. तीर्थंकर भगवंतों की देशना का सार, जैन अध्यात्म, हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य, इस विषय पर हम पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं. और
आज हम उसकी समरी लेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आप पूछ सकते हैं। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ होगा? ज्ञान वो पावरफुल टूल है कि विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी परिस्थिति में आप हों, यदि आपके पास ज्ञान संपदा है तो आप शहंशाह हैं, विजेता हैं। और यदि आप अज्ञान से भरे हुए हैं तो फिर आप कहीं भी हों, आप दुखी और दरिद्री रहने वाले हैं। तीर्थंकरों ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को धर्मोपदेश से अभिभूत किया। बाद में आचार्य परंपरा से हम तक धर्मोपदेश पहुंचा, और फिर विद्वानों के क्रम से हम तक धर्मोपदेश पहुंचा। हमारे पास धर्मोपदेश शास्त्र में सुरक्षित है। हम धर्मोपदेश तक पहुंच सकें इसलिए हमने रिचुअल्स क्रिएट किए, हमने कुछ परंपराएं बनाई, कुछ क्रियाएं बनाई, ताकि 24 घंटे के रूटीन में आप एटलीस्ट इतना तो करें, इतना तो करें, ताकि आपको फील होता रहे कि हम जिन शासन में हमारा जन्म हुआ है। जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उन क्रियाओं का उद्देश्य यही है कि आप क्रियाओं के माध्यम से जिन शासन में एंट्री लेते हैं, वो प्रवेश द्वार है। कोई भी क्रिया, भगवान के मंदिर में देव दर्शन करने गए तो देव दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। कि आज आप तीर्थंकरों को देख रहे हो, हम विश्वास रखते हैं कल आप तीर्थंकरों की बात सुनोगे। जब आप सुनोगे तो हम आशा करते हैं कि आप मानोगे। जब आप मानोगे तो हम आशा करते हैं आपका परिणाम, आपकी परिणति निर्मल होगी। और जिसकी परिणाम और परिणति निर्मल होगी, फिर वो कोई भी मतपन संप्रदाय का व्यक्ति रहे, यदि वो चेतन सत्ता है तो उसे मोक्ष मिलेगा। हमें जो मोक्ष मिलेगा वो इस वजह से नहीं मिलेगा हम किस गति के हैं, इस वजह से नहीं मिलेगा हम किस कुल से हैं, इस वजह से नहीं मिलेगा हम किस पंथ संप्रदाय के हैं। हमें मोक्ष हमारी निर्मल परिणति से मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग तो सरल और सुगम है, एक जैसा है। हमें वहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंच सकते हैं? कि शास्त्रों के गहन अभ्यास से। हमने कुछ चर्चा बनाई और सबसे पहले हमने तय किया कि हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो हमने हमारा लक्ष्य क्लियर किया, चेतन की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए, जिसको हम सिद्ध दशा कहते हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा शुद्ध हैं, वैसी शुद्धता मुझे प्रकट करनी है। हाँ, ये जरूर है, कभी कभी दरिद्री लोगों के बीच में अगर आप बोल दो कि मुझे करोड़पति बनना है, तो वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं कि अभी खाने पीने के तो ठिकाने नहीं है तुम्हारे, और करोड़पति बनना है। तो ऐसे हमारी इस बात का कोई मजाक भी बना सकता है। गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, अभी आप करते ही क्या हैं, और वाह मोक्ष जाना है आपको, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आचार्यों का संबल हमारे पास है, तीर्थंकरों की वाणी का आधार हमारे पास है, जिससे हम कॉन्फिडेंट हैं। भारत का संविधान हमारे हाथ में है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि भारत का कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति में उसका जन्म हुआ हो, उसका शिक्षा का अधिकार है, बड़ा बनने का अधिकार है, धनवान होने का अधिकार है, सभ्य नागरिक बनने का, जो जो सुविधाएं पूरे विश्व के लोगों को उपलब्ध है वो उसे उपलब्ध हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती हैं। आज किस परिस्थिति में है, इसकी कोई विषय ही नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, वर्तमान परिस्थितियों को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि हम अपना लक्ष्य, अपना टारगेट सब भूल जाते हैं। कितने लोग तो इतने ज्यादा दरिद्री जीवन जीते हैं कि सुबह का भोजन करके शाम के भोजन की परिकल्पना करते हैं, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब ऐसे जीव के सामने करोड़ों अरबों रुपए की बातें करें आप, तो उसके मन में क्या होता है? अरे भाई पहले कुछ खाने को दो दे, फिर हमसे बात करना। तो ऐसे ही जब हम ये शुद्ध तत्व ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारे ही अपने साधर्मी, हमारे ही अपने लोग, अरे भाई साहब ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। सुनो, बात ऊंची नहीं है, तुम ज्यादा नीचे हो तो तुम थोड़ा ऊंचे आ जाओ, तो बात बराबर पे आ जाएगी। क्योंकि अब हम बे सब बातें करके क्या करेंगे? परोपकार करना चाहिए, दया करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कि सुनो, ये सब बातें तो हमारे खून में हैं,
हम जिस सात्विक परिवार में हमारा जन्म हुआ है, जिस उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ है, दया दान करुणा तो हमारे रग रग में है। अब तो इससे ऊपर बताओ कि अब क्या करें, कि अब रत्नत्रय की साधना करो। हाँ, जिसके पास ये सामान्य चीजें नहीं हो, हम उसे उसकी भी प्रेरणा देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं है, देंगे। लेकिन अब हम बात थोड़ी आगे की कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे अपनी निर्मल अवस्था चाहिए, मुझे अपने निर्मल परिणाम चाहिए। मेरे निर्मल परिणाम कौन कर सकता है? मेरा भविष्य कौन ठीक कर सकता है? मुझे मोक्ष में कौन भेज सकता है? क्या ये बताओ, आज तक तुम्हें संसार में किसने भेजा? किसी ने तुम्हें संसार में भेजा हो, संसार में पकड़ के रखा हो, तो फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब इसको छोड़ दो, इसको मोक्ष में जाने दो? पता चला किसी और की वजह से नहीं, मैं अपने ही भावों, अपने ही परिणामों से संसार में घूम रहा हूं, तो अपने ही भावों, अपने ही परिणामों से मोक्ष जाऊंगा। संसार में घूमने में मेरा हेतु मैं ही हूं, तो संसार से मुक्त होने में मैं ही कारण बनूंगा। पराधीनता का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मेरे सच्चे देव, मेरे सच्चे शास्त्र, मेरे सच्चे गुरु मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं, वे मुझे भगवान नहीं बना सकते। ये रोड पे जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, ये क्या करते हैं कि मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, मतलब उठा के मंजिल पर रख देंगे। ये बता सकते हैं कि मंजिल इधर है, चॉइस आपकी है। तो देव शास्त्र गुरु ये क्या कर सकते हैं कि मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं, साइन बोर्ड की तरह बता सकते हैं कि अब यहां से लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। लेकिन गाड़ी तो तुम्हें ही चलानी है। और वो यात्रा जो है वो 3 शब्दों की यात्रा है, सभी की। इस संसार में जितने भी जीव मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें ये 3 शब्द याद रखना चाहिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और ये तीनों चीजें कहाँ होती हैं? चेतन में। ये तीनों चीजें किसकी अवस्थाएं हैं? मेरी अवस्थाएं हैं। 3 गुण विशेष हैं: श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण। श्रद्धा का सम्यक परिणमन, ज्ञान का सम्यक परिणमन, और चारित्र का सम्यक परिणमन। बराबर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीनों के परिणमन में सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दर्शन। देखो, एक अपेक्षा ये भी है कि साहब सम्यक दर्शन पहले कैसे हो सकता है? पहले सम्यक ज्ञान होगा। और इसको समझना हो तो ऑरलैंडो के मंदिर का जो अपना सेंटर है ना, उसके मंदिर के दर्शन करो, तो वहां 3 दरवाजे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? ज्ञान। फिर क्या लिखा है? दर्शन। फिर क्या लिखा है? चारित्र। तो बोलो, और उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो मामला क्या है? क्या लगता है आपको? देखो, हाँ। हम्म। लो, लता बहन कह रही है कि जो हायर लेवल के लोग हैं उनके लिए ज्ञान पहले है। और जो नीचे हैं उनके लिए दर्शन पहले है। देखो, ज्ञान और दर्शन दोनों साथ में बि- है। कहना है किसी को? कोई बात न- नहीं। बिना ज्ञान के तो दर्शन होना भी थोड़ा मुश्किल है। ये भी एक लॉजिक है, बिना ज्ञान के दर्शन होना मुश्किल है। बोलो भाई, क्या कहना है? मैं आचार्यों के साक्षी से एक बात कहता हूं, कुछ चीजें होती हैं एकदम बेसिक कॉमन, कुछ होती हैं स्पेशल विशेष। शास्त्र में इसे बोलते हैं सामान्य कथन, विशेष कथन। सामान्य कथन बहुत सामान्य होता है, वो सब पे लागू हो जाता है। विशेष कथन बहुत विशेष होता है, वो आपको विवक्षा से समझना पड़ेगा। तो जब हम सामान्य कथन करेंगे तो उसमें ये कह सकते हैं कि पहले हमें ज्ञान होगा। भाई पता लगे ना, पहले तो 7 तत्व होते हैं, पहले हमको 7 तत्वों का ज्ञान हुआ। 4 दिन हम प्रवचन में बैठे तो कम से कम नाम तो सीखे 7 तत्वों के। फिर हमने उनके लक्षण समझे, और जब अच्छे से जान लिया, फिर हमें भरोसा हो गया कि ये 7 तत्व ऐसे हैं। तो जो भरोसा हुआ वो सम्यक दर्शन, श्रद्धान हुआ। तो पहले ज्ञान हुआ।
तो ऐसे हमें सुनने में लग रहा है पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। टोडरमल सामने भी मोक्षमाण प्रकाशक लिखा है, तो वहां लिखा है कि हमको सम्यक दर्शन की बात करनी है, लेकिन जानेंगे तो सम्यक दर्शन करेंगे, नॉलेज ही नहीं होगा तो भरोसा श्रद्धान किसका करें। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूं आप भरोसा करो ये सोना है, तो मैं भरोसा कब करूंगा जब ये सोना है, जब आप मुझे बताओगे, इसका हॉलमार्क दिखाओ, इसका सर्टिफिकेट दिखाओ, इसको काले पत्थर पे घिस के दिखाओ, ज्ञान हमको, तो हम भरोसा करेंगे। तो सामान्य कथन में तो हमको लगता है कि पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा, लेकिन बात यह है कि पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ज्ञान हो गया है तत्वार्थ 7 हैं, ज्ञान हो गया ना, ज्ञान हो गया ना आपको, तत्वार्थ कितने हैं? 7। नाम भी पता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ हैं, ये हमको पता है। तो जब आपको पता है तो आपको सम्यक दर्शन हो गया क्या? तो ज्ञान तो है आपके पास। देवता प्रसन्न हो रहे हैं, कलर चेंज करो, अतिशय हो रहा है। ज्ञान तो है ना, 7 तत्व हैं आपके पास, ज्ञान में आपके 7 तत्व हैं कि नहीं है? तो ज्ञान तो है आपके पास, तो श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब मैं चलता हूं त्रेंच गति में, वहां सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? वहां कौन सी पाठशाला में जाके सम्यक दर्शन होता होगा? मैं चलता हूं नरक गति में, नहीं होता है ना, that's what he's proving. रिपीट करूं, फिर से पूछ लेता हूं, त्रेंच गति में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई त्रेंच गति का जीव है, आज मिथ्या दृष्टि है, कल वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। धन्यवाद, हो सकता है। तो वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? शांति से होल्ड करना। नरक का नारकी है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? वो तो सतपथ प्रश्न मंच में भाग नहीं लेंगे भाई, वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो अब इसके टेक्निकली पार्ट समझना। एक सम्यक ज्ञान माने श्रुत ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान, जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है, समझो तत्वा सूत्र का ज्ञान। तो तत्वा सूत्र में जो ज्ञान है वो सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक है, सम्यक ज्ञान है भाई। तत्वा सूत्र का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो फिर किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा? तत्वा सूत्र का ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है। अब तत्वा सूत्र का ज्ञान मुझे हो गया, मैंने पढ़ लिया तत्वा सूत्र, अर्थ समझ लिया, भाव समझ लिया, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो सम्यक ज्ञान बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? तत्वा सूत्र में लिखे हैं 7 तत्व होते हैं, मैं भी आपको 7 ही बता रहा हूं, तो वहां भी सम्यक ज्ञान है, मैंने जो बताया वो भी सम्यक ज्ञान है। तो एक तो ये सम्यक ज्ञान है, कौन सा? जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में बताया है, केवल ज्ञानियों ने कहा है, आचार्यों ने लिखा है, ये सम्यक ज्ञान है। एक कि मेरा जो ज्ञान है वो सम्यक हो। दो सम्यक ज्ञान समझ में आ रहे हैं आपको? कौन से 2 सम्यक ज्ञान? 7 तत्व 7 होते हैं, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? ये सम्यक ज्ञान है। अच्छा, मुझे इस मामले में सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? तो हो सकता है आपको ये पता हो कि तत्व 7 होते हैं, फिर भी आपका ज्ञान मिथ्या हो। आपको पता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तत्व कितने होते हैं, आप जवाब दोगे 7 होते हैं, फिर भी आपका ज्ञान मिथ्या हो। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान सम्यक कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। यदि आपको श्रद्धान नहीं है सम्यक, तो ज्ञान भी सम्यक नहीं है। ज्ञान कब सम्यक होता है? जब श्रद्धान सम्यक होता है। तो ओवरऑल पिक्चर इतनी सी है कि पहले आपको ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा माने शास्त्रों का ज्ञान होगा, उस ज्ञान का आप विचार करोगे, और उस ज्ञान के विचार करने पर उस पर आपको भरोसा होगा, तो फिर आपका भी ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाएगा। और यदि आपको भरोसा नहीं होगा तो आपका ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं कहलाएगा, आप हार्ड डिस्क कहलाओगे, पेन ड्राइव कहलाओगे।
मेमोरी कार्ड कहलाओ। ये पंडित जी जितने घूम रहे हैं ये मेमोरी कार्ड घूम रहे हैं। भाई 10 साल 5 साल पढ़ाई किया, अपने दिमाग में डाल दिया। अब आप कहीं से कुछ भी पूछते हो, शास्त्र में क्या लिखा है हम आपको बता देते हैं। अगर मुझे भरोसा नहीं है तो मेरा मोक्ष नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं कईयों का मोक्ष करा दूं, लेकिन खुद को भरोसा ना हो तो मेरा ज्ञान सम्यक या मिथ्या? मिथ्या। मैंने जो ज्ञान डिलीवर दिया वो सम्यक या मिथ्या? कि सम्यक। थोड़ा सा बारीक है, ख्याल में आया? तो के भाव भाषण नहीं हुआ। हाँ, तो पहले सामान्य ज्ञान होगा, तत्वों का ज्ञान होगा, उस ज्ञान को मैं विचार मंथन चिंतन में करूंगा, फिर निर्णय होगा। निर्णय हो गया तो मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, निर्णय नहीं हुआ तो मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। कि सुनो भैया, एक और बात बताता हूं, ज्ञान सम्यक और मिथ्या नहीं होता है। ज्ञान सम्यक मिथ्या नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान। बारीकी से समझने की कोशिश करना। सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान सम्यक मिथ्या नहीं होता है। श्रद्धा सम्यक और मिथ्या है। सम्यक श्रद्धा है तो ज्ञान सम्यक, मिथ्या श्रद्धा है तो सब गड़बड़। जैसे 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 कोई व्यक्ति अपनी माता को माता कहता है, तो इसने सच कहा कि झूठ कहा? सच कहा। अब वही व्यक्ति 2 बोतलें पी के आ गया है, शराब के नशे में है, शराब के नशे में वही व्यक्ति वो अपनी माता को माता कहता है। तो ये जो माता से माता कह रहा है, बोले इसे दूर रहना, इससे दूर रहना। कि बोल तो सच रहा है कि ये बोल सच रहा है, लेकिन श्रद्धांश सच्चा नहीं, इसका नशे में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वचन वही है, नॉलेज वही है, क्षयोपशम वही है। शास्त्रों का ज्ञान अगर मैं अपने दिमाग में रखूं, इससे मेरा मोक्ष नहीं होगा। क्यों? शास्त्रों का ज्ञान मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मोह तीव्र है। मैं शास्त्रों के ज्ञान से लौकिक कामनाएं करना चाहता हूं, मैं शास्त्रों के ज्ञान से यश प्रतिष्ठा चाहता हूं, मैं शास्त्रों के ज्ञान से शिष्यों का प्रोटोकॉल चाहता हूं। अब वो तो इंटरनल पार्ट है ना, वो फल तो बोलो उसका मिलेगा तुम्हें। मैं शास्त्रों का ज्ञान बघार के आपको अपने वशीभूत करना चाहता हूं, फिर मेरी मर्जी है, मैं आपसे कुछ भी करवाऊं। तो बोली ये सारा का सारा प्रोग्राम जो हो रहा है वो श्रद्धान में हो रहा है। इंटेंशन जिसको बोलते हैं, अभिप्राय जिसको बोलते हैं। तो नॉलेज, फिर चिंतन मंथन, फिर निर्णय, और निर्णय के बाद जो नॉलेज था वो हमारा सम्यक नॉलेज, राइट नॉलेज, वो सही है। और सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, देखो एक बात और समझ लो आप, मोक्ष मार्ग में जिसको सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सुनना वाक्य को, सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप समझ ले। कि रस्सी पड़ी हुई है और उसे लगे सांप है, आचार्य पता क्या कहते हैं शास्त्रों में? इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और कोई मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, जैसा है वैसा, बोले इसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्या मतलब हुआ? वही वाली बात होगी कि होशो हवास में कोई व्यक्ति है, नशा नहीं किए हुए, शराब नहीं पिए हुए है, तो पत्नी को माता कह दे या माता को पत्नी कह दे तो भी निरपराधी है, उसका अपराध नहीं है। पत्नी बैठी हो और माँ बोल देवे, माँ बैठी हो पत्नी के नाम से बोल देवे, अपराध नहीं हुआ। लेकिन शराब पिए हुए है, नशा किए हुए है, वो माता को माता बोले, पत्नी को पत्नी बोले तो भी अपराधी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कि हमारा जो अभिप्राय है, सारा खेल वहां से है। मैं इसको इजी करता हूं। मैं मान के चलता हूं, कल हमने जो चर्चा की थी 7 तत्वार्थों में से मोक्ष की पहले से चर्चा चल रही है। फिर अपन आश्रव बंध के पास गए, और आश्रव बंध के कारण जीव अजीव का मिथ्या ज्ञान, जीव अजीव एक है ये बात अपन मान रहे हैं, बराबर है। तो जीव अजीव के संबंध में विपरीत श्रद्धान है हमको, और हम उस विपरीत श्रद्धान से जीवन जी रहे हैं। जैसे 1 नंबर, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये मान्यता मेरे अंदर में ठूस ठूस के भरी है, बराबर।
अब हम मंदिर चले गए और भगवान की भक्ति करने लग गए। अब जब भक्ति कर रहे हैं तो मुख से वचन निकल रहे हैं, भक्ति के वचन निकल रहे हैं। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, कि हम आए पूजन को। जो जो भक्ति आप कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो वाणी आपकी भक्तिमय है, परिणाम आपके भक्तिमय है, लेकिन अभिप्राय, इंटेंशन, मैं शरीर हूं, ये कंटिन्यू है। तो क्या हो रहा है कि वहां पुण्य भी बन रहा है, क्योंकि वाणी और क्रिया की प्रशस्त परिणाम, तो पुण्य भी बन रहा है। लेकिन ध्यान रखो, अंदर में मिथ्यात्व तो बैठा है, विपरीत मान्यता बैठी है, तो दर्शन मोह यानी घातिया कर्म की पाप प्रकृतियों का भी बंद हो रहा है। ख्याल में है? तो क्रिया चल रही है अच्छी और बंद हो रहा है खराब। उल्टा भी हो सकता है, क्रियाएं कदाचित खराब चल रही हो, कोई गृहस्थ हो, सम्यक दृष्टि हो, के काम करना पड़ रहा हो, दूसरे काम करना पड़ रहे हो, उसे परेशानी, इधर उधर व्यापार करना पड़ रहा है, अन्य क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अभिप्राय निर्मल है। आपने भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है कि साहब भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी घर से विरक्त रहता था, घर में रहते हुए भी घर से विरक्त रहता था। गीत चलते थे उस समय, भरत जी घर ही में वैरागी, ऐसे ऐसे गीत बने थे। तो प्रश्न ये था कि आप भरत जी घर में वैरागी कैसे रह सकते हैं? तो शास्त्र की जो कथाएं हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इतनी चर्चा हुई उनकी कि ये बात देवताओं तक पहुंच गई। तो देवताओं को भरोसा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा कि भरत जी घर में बैरागी? तो देवता उनकी परीक्षा करने आए, जगदीश जी, देवता उनको टेस्ट लेने आए कि हम चेक करें कि इस बात सही है कि झूठी है। तो आपको पता है क्या किया उन्होंने? पता होगा, कहानी प्रसिद्ध है। हाँ, तो उन देवताओं को तेल के 2 कटोरे दे दिए हाथ में, लो पकड़ो और पूरा महल देख के आओ, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड दे दिए। बोले अगर एक बूंद भी तेल के नीचे गिर जाए तो इनकी गर्दन उड़ा देंगे। तो वो पूरा महल घूम के आ गए। महल घूम के आने के बाद भरत जी ने पूछा कि अच्छा बताओ, पूर्व दिशा में आपने क्या देखा? बोले तेल। दक्षिण दिशा में क्या देखा? बोले तेल। राजमहल कैसा लगा? बोले क्या खाक लगा, तेल देखा मैंने तो मेरी दृष्टि तो तेल पर थी। ख्याल में आया? क्यों? क्योंकि गर्दन कटने का भय था। ओहो। तो उदाहरण से समझाने का प्रयास किया कि आपको लगता है चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, सौगानी जी का बोल है, चक्रवर्ती तो अखंड आत्मा को जीतता है। वो तो वहां साम्राज्य है उसका। तो उसकी दृष्टि तो खानते सोते उठते बैठते जागते आत्मा की ओर है। तो वो श्रद्धान में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये मानता है। तो श्रद्धान में जो मैं आत्मा हूं ये मानता है, फिर वो गृहस्थी के भी कार्य कर रहा है, तो दर्शन मोह का बंध नहीं हो सकता, उसे मिथ्यात्व का बंध नहीं हो सकता, अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो सकता है। और मैं शरीर हूं, जो ऐसा मान रहा है, वो धर्म कार्य कर रहा हो तो भी उसे मिथ्यात्व का तो बंद हो जाएगा। धर्म कार्य करेगा उसे पुण्य तो बनेगा, लेकिन मिथ्यात्व का भी बंद होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि आपका श्रद्धान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो मिथ्यात्व को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिथ्यात्व का जो महल खड़ा हुआ है, मिथ्यात्व की जो बिल्डिंग है पूरी, अपन एक नीचे से बम ब्लास्ट करके पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हैं मिथ्यात्व की। उसका बेस क्या है कि मिथ्यात्व 4 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। मिथ्यात्व जो खड़ा है ना, मिथ्यात्व का पूरा महल अनादिकाल से, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संसारी सभी जीवों को ये मोह पीड़ित करता है, मोह पीड़ा पहुंचा। अच्छा, कई लोग फील भी करते हैं, पर नहीं, सही कह रहे हो। इस धरती पर अभी भी लाखों जीव कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, लाखों जीव। कोई भूखों मर रहा है, कोई युद्ध में मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में परेशान है, लाखों जीव परेशान है। आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं। लेकिन आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके मोहल्ले में आपके पहचान वाले वो कुछ होते हैं तो फिर तकलीफ। तो तकलीफ किसकी है? लोगों को तकलीफ हो रही है, इसकी तकलीफ है कि तुमको उस व्यक्ति से, उस वस्तु से मोह है, इसकी तकलीफ है। तो तकलीफ तो मोह दे रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा है। पूरे विश्व में ये मोह साम्राज्य कर रहा है।
तो जैन आचार्यों ने कहा कि आओ अब हम मोह को भगाते हैं, क्योंकि इस मोह को नहीं भगाया तो मोह तुम्हें गति गति में भगाएगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा ये, और मार रहा है, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, तीसरी गति से। क्योंकि मिथ्या दर्शन कैसे काम करता है, एकदम इनविजिबल, दिखता नहीं है, ये क्रियाएं दिखती हैं। मैं आपको नाराजगी से देखूंगा, आपको पता चल जाएगा नाराज हूं, मैं मुस्कुरा के देखूंगा, आपको पता चल जाएगा आप प्रसन्न हैं। क्रियाएं दिखती हैं। मैं आपसे कहूंगा भगवान बनो, तो एक सेकंड में ऐसे बैठ जाओगे, हाँ बन गए भगवान। क्रियाएं दिखती हैं और उनको मॉडिफाई करना, उनको परिवर्तन करना बहुत इजी लगता है, लेकिन उन क्रियाओं के पीछे जो परिणाम है उनको व्यवस्थित करना भारी काम है। मैं सबको मंदिर ले जाऊं और सबसे कहूं सब शांति से पूजन में भगवान के सामने चुपचाप बैठ जाओ, तो आप चुपचाप बैठ जाओगे? कैसे? शरीर से चुपचाप बैठ जाओगे, मन से चुपचाप बैठोगे कि नहीं बैठोगे? वहां मौन ले लिया तो वाणी ने तो मौन ले लिया, शब्द नहीं निकल रहे हैं वहां, लेकिन मन में विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अच्छा, वो विकल्प कैसे चलते हैं, अच्छे या बुरे? वो दोनों तरह के चल सकते हैं। हिंसा के झूठ के चोरी के कुशील के परिग्रह के पूछो मत पंडित जी, मुंह मत खुलवाओ, ये सब बंद रहने दो, अपने 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 अंदर जिसके जो चल रहे हैं वो अपने अपना चेक कर लो, बोलो मत। अब क्रिया हमारी एकदम परिशुद्ध है और परिणाम हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सबके खराब हो, परिणाम अच्छे हो सकते हैं। मन भक्ति में रम सकता है, कभी म्यूजिक से कोई डांस हो रहा हो तो मन वहां रम सकता है, कोई बांसुरी बज रही हो तो मन वहां जा सकता है, क्या गजब बजाया भाई साहब, गजब कर दिया आज तो आपका परिणाम घूम सकता है पूरी दुनिया, क्रिया नहीं घूम सकती, क्रिया एक जगह है। तो अब आपसे पूछता हूं, पूजन की क्रिया चल रही हो, किसकी क्रिया? पूजन की क्रिया चल रही हो, तो पूजन की क्रिया शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया है? बच्चा बच्चा जानता है सब शुभ क्रिया है। तो शुभ क्रिया वाली पूजन में आपको अशुभ परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो पता लगाना ये अशुभ परिणाम कैसे हुए शुभ क्रिया में। जब मैं क्रिया शुभ की करता हूं तो अशुभ परिणाम कैसे हो गए? इससे पता चला कि क्रिया से परिणाम नहीं सुधरते हैं। क्या हुआ? क्रिया से परिणाम नहीं सुधरते हैं, न्याय समझना। अच्छा, परिणाम सुधर गया आपका तो क्रिया सुधर जाएगी। जब तक परिणाम नहीं सुधरते हैं तब तक हम क्रिया सुधारने की कोशिश करते हैं, क्रिया सुधारने का उपदेश भी देते हैं, लेकिन इंटरनल व्यवस्था बता रहा हूं, कर्म कैसे बनते हैं। अच्छा, कर्म आपकी शकल देख के बनते हैं या परिणाम देख के बनते हैं? मतलब ऑरलैंडो में क्या सिस्टम है, जैसे कर्म आपके पास बंधने के लिए आए तो कर्म पहले आपको देखेंगे आप कैसे रखते हैं, गुड लुकिंग है, ड्रेसिंग अच्छी से की रखी है, मेकअप कर रखा है, क्या क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे? आपकी शकल देख के कर्म बंधेंगे या आत्मा देख के, आत्मा में विकार देख के, परिणाम देख के कर्म कैसे बंधन होगा? है? आपके शरीर का वजन देख के कर्म बंधेंगे, आपके शरीर का डिजाइन देख के कर्म बंधेंगे, आपके महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगे बंगले देख के कर्म बंधेंगे। तो कर्म बंधन का कनेक्शन किससे है? जिस दिन आपको ये पता चल जाए उस दिन आप विचारोगे शांति से, आग्रह छूट जाएंगे, क्रियाओं के आग्रह छूट जाएंगे, जिद छूट जाएगी, परेशानी छूट जाएगी, आपको रहस्य मिल जाएगा। क्या रहस्य मिल जाएगा? कि कर्म बंधन जो होगा ना वो किससे होगा? क्रिया से के परिणाम से। अच्छा, दूसरी बात, पंडित जी इसमें तो गड़बड़ हो सकती है, तुम परिणाम परिणाम की बात कर रहे हो, कल से हमारी सारी क्रियाएं बंद कर देंगे ऐसे तो लोग। भाई क्रियाओं से कुछ नहीं होता है कि सुनो, परिणाम पलट गया तो क्रिया तो पलटेगी ही पलटेगी। अगर मेरे मन में हिंसा का भाव नहीं है, मैं तलवार लेके ऐसे निकलूंगा घर से? मेरे अंदर हिंसा का भाव नहीं है तो तलवार लेके नहीं निकलूंगा ना, तो मेरी क्रिया कैसी रहेगी? एक अहिंसक व्यक्ति की जैसी क्रिया होती है वैसी रहेगी। यदि मैं परिणामों से अहिंसक हूं तो मैं देख के चलूंगा, मेरा प्रयास होगा कि मेरे पैरों के नीचे एक चींटी भी नहीं आनी चाहिए। बराबर है ना? तभी तो ना।
हाँ, परिणाम सुधरे होंगे तो भगवान के पास डायमंड सोने चांदी के हार देख करके और वो सब छत्र चमर देख करके मुझे चोरी का भाव आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? मेरा बिहेव अच्छा कैसे हो गया, मेरा बिहेव सुंदर कैसे हो गया, उसका आधार क्या है? परिणाम। समझ में आ रहा है? लेकिन 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 दूसरा पक्ष भी याद रखना, जब तक हम बहुत विवेकवान नहीं होते हैं तब तक हम क्रियाओं का अवलंबन लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सामायिक करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे बैठ गए, वो तो ऐसे बैठने से सामायिक हो गया? नहीं। लेकिन हम उसे और क्या बता सकते हैं? तो क्रियाओं का निरूपण भी क्रिया है शास्त्रों में। क्यों किया है? क्योंकि आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो कम से कम क्रिया तो करो। एक्टिंग ही कर लो, डॉक्टर डॉक्टर ही खेल लो। नहीं बनोगे, जब डॉक्टर बनोगे तब बनोगे। तो बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। हाँ हाँ, हम ऐसे श्रावक श्रावक खेलते हैं करते हैं। तो क्रिया करने, आप श्रावक हो के नहीं हो ये रिपोर्ट कार्ड का विषय है, अभी ओपन मत करो आप साधु हो या नहीं हो, ये रिपोर्ट कार्ड का विषय है, ओपन मत करो। 4-5 आपके चेले हैं या 4-5 हजार आपके चेले हैं इसलिए आप साधु फाइनल डन, ऐसा नहीं है। भीड़ आपके साथ है, फॉलोअर आपके पास हैं, आप समझे ना, वो इंटरनल पार्ट है। और ये क्या दिख रहा है? बाहर का तामझाम है। तो आपको क्रिया और परिणाम दो अलग अलग चीजें समझ में आना चाहिए, और खास करके तब समझ में आएंगी, ये विषय तब काम आएगा जब ये मनुष्य सामर्थ्यहीन हो जाता है, शरीर से उठने बैठने लायक भी नहीं बचता है, फिर भी मलिन परिणाम ना करके कि मैं तो कुछ क्रियाएं कर ही नहीं पा रहा हूं, पवित्र परिणामों से साधना करता है। समाधि संथारा क्या है? अब जो समाधि संथारा लेते हैं वहां तो क्रियाएं बचती नहीं है, क्या क्रियाएं करेंगे, शरीर में सामर्थ्य नहीं बची है। लेकिन परिणामों को सजग रख के, परिणामों को जागृत रख के वो अपना काम करते हैं। अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की नहीं। और इसका भी कनेक्शन कैसा है? अंदर में यदि विकृति होगी, अंदर में विकृति होगी या अंदर में अच्छाई होगी तो उसकी व्यक्तता बाहर में आएगी। बाहर में जैसा है वैसा अंदर हो जरूरी नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक बारीक सी रेखा है। बाहर में शुभ क्रिया हो तो जरूरी नहीं है अंदर में परिणाम शुभ हो, जरूरी नहीं है। लेकिन बाहर में यदि अशुभ क्रिया होगी तो गारंटी है परिणाम अशुभ होगा। विचार विश्लेषण करते जाए ना, क्योंकि आज जो है अब सम्यक दर्शन होने ही वाला है बस। मैं सार तो ये है, जैसे भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं ना, ऐसे आपको बैठना है। हाथ पे हाथ रख के तो आप बाद में बैठोगे, क्रिया से तो परिणामों से निर्भर होना है। अपने सर से बोझा उतारना है। आपके ऊपर किसी मत पंथ संप्रदाय की जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर शरीर मकान दुकान रुपया पैसे की जिम्मेदारी नहीं है। आपके सर पे कुछ जिम्मेदारियां नहीं है। सिर्फ रत्नत्रय की साधना है कि बाकी सब तो गुणस्थान प्रमाण होगा। श्रावक है श्रावक जैसे भाव आएंगे, मुनि है मुनि जैसे भाव आएंगे, बालक है बालक जैसे भाव आएंगे, युवा है युवा जैसे भाव आएंगे, वृद्ध है वृद्ध जैसे भाव आएंगे। सब कुछ होगा, लेकिन निर्भर रहना है। फिर बाहर अशुभ हो तो अंदर भी अशुभ ही होते हैं। हाँ क्योंकि पुण्य पुण्यानुबंधी पाप भी होता है। हाँ, फिर जैसे नहीं ऐसे ऐसे होता है। क्रिया, अभी अभी क्रिया और परिणाम की बात चली, वो सारा परिणाम का होता है, क्रिया का थोड़ी है। वो जो तलवार लेके बाहर जो तो हो तो बाहर इंटेंशन अंदर की तो खराब अच्छे नहीं तो मैं तलवार ले लूंगा। देखो देखो, इसका बहुत बहुत इजी करता हूं, आप कैटेगरी चेंज नहीं करना। मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ, क्रिया और परिणाम बराबर है। क्रिया शुभ है तो परिणाम शुभ होंगे, जरूरी है। शुभ क्रिया माने मैं आरती उतार रहा हूं, या चावल चढ़ा रहा हूं, या गुरु जी के चरण स्पर्श कर रहा हूं, या भगवान का प्रक्षाल कर रहा हूं, मंदिर की सेवा कर रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, वैयावृत्ति कर रहा हूं भगवान की, जो भी कर रहा हूं, ये सब शुभ क्रियाएं हैं। परिणाम भी शुभ होंगे, कंपलसरी है क्या? नहीं। चलो, अब मैं तलवार लेके निकला हूं, पिस्टल लेके घूम रहा हूं,
ये कौन सी क्रिया है? अशुभ। परिणाम शुभ हो सकते हैं क्या? किसी रक्षा किसी की रक्षा के लिए अगर कुछ भी करने जाओगे अंदर में क्रूरता चाहिए भाई साहब। तलवार का उपयोग करवा માટે તો हिंसा जो है ना अंदर आपको हिंसा का भाव आएगा। किसी भी पर्पज से आपको हिंसा का भाव आया है, वो भाव हिंसा का कहलाएगा, वो अशुभ भाव कहलाएगा। गुण स्थान कमजोर है तो आ जाता है। जैसे श्रावक है, श्रावक को विरोधी हिंसा का भाव हो जाता है, और मुनराज बैठे हुए हैं तो उनको नहीं होता है। इसलिए मुनराज की मुक्ति हो जाती है, श्रावक की मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि वो भाव जो आया ना हिंसा का, जो 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 क्या दूसरों की रक्षा के लिए, किसने कहा था दूसरों की रक्षा के लिए आप हिंसा करना? कठिन काम है ये मोक्ष मार्ग। कठिन काम क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को पर्याय अपेक्षा से समझने लग जाते हैं बार बार, और हम गाड़ी आगे बढ़ा के ले जाते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना की ओर। हम वापस वही जाते, हम तो मनुष्य हैं, हम तो परिवार वाले हैं, हमको तो परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम परिवार की रक्षा कर लो, तुम मोक्ष का प्लान छोड़ दो, एक काम करो, कर लो। भाई साहब, श्री कृष्ण और बलदेव पूरी ताकत लगा दी द्वारका नगरी को बचाने के लिए, अपने माता पिता को नहीं बचा सके। इस सच्चाई को समझो। आप कर्तृत्व का भार सर पे लिए घूम रहे हो। परिणाम आपको शुभ आ सकता है, बचाने का भाव आ सकता है, लेकिन बचाने का अहंकार पाप है। बचाने का भाव आ सकता है, लेकिन आपने बचाने का भाव किया और किसी की जान बच गई। अब जिंदगी भर अहंकार मत करो कि मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बचाया। हु आर यू? उसका आयुष था। तुमने बचाने का भाव किया तो तुम्हें पुण्य बन जाएगा। अगेन वापस, हाँ जी, ये सब्जेक्ट जो है, विष्णु कुमार मुनि को पाप लगा या पुण्य? डिड ही गो मोक्ष लेटर? जिस समय वो जो काम कर रहे थे, जो क्रियाएं कर रहे थे, जैसे भाव कर रहे थे, उस भावों के अनुसार फल मिला। वे जो मोक्ष गए, वो करने से मोक्ष नहीं गए, मोक्ष तो वो छोड़ के गए। टेक्निकल पॉइंट समझे? विष्णु कुमार मुनराज थे, बराबर है। मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग हुआ। सामान्य राजमार्ग ये है, कोई भी मुनराज और मुनराज रहते हुए दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद मुनराज हैं, नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या किया? मुनि पर छोड़ दी, रक्षा की। फिर वापस क्या किया? मुनिपाद अंगीकार किया। पॉइंट समझ में आ गया? तो वो जो टेम्परेरी काम किया बीच में, उससे क्या हुआ? तो उससे पुण्य पाप बंधा। अब जो किया, इससे मोक्ष होगा। वो जो 700 मुनियों की रक्षा की, उससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो शुक्ल ध्यान से होगा, राग भाव है, उससे स्वर्ग होगा। रक्षा से स्वर्ग होगा, और रक्षा में भी दूसरों को निपटाया, उससे पाप ही होगा, उससे पुण्य नहीं होगा। मतलब अपने दिमाग में से काशायिक अनुभूति निकाल के फेंक दो। कई कई लोग एक लॉजिक देते हैं, पता है क्या लॉजिक देते हैं? कि सब मैं लड़ता हूं तो मैं अपने लिए थोड़ी लड़ता हूं, मैं तो मंदिर के लिए लड़ता हूं, मैं तो भगवान के लिए लड़ता हूं। तो मैं उससे कहना चाहता हूं, भाई साहब, तुम किसी के लिए भी लड़ो, लड़ोगे तो कषाय होगी, और कषाय होगी तो बंद होगा। देखो, अगर आपको कमजोरी है तो उसे कमजोरी तो कहो, उसको शाबाशी क्यों कहते हो? ये कहो कि मुझे मंदिर से बहुत राग है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे गुस्सा आ जाती है। मंदिर का कोई बुरा बोलता है, संघ का कोई कुछ कहता है, तो मुझे आ जाता है। लेकिन वो जो आ जाना अच्छा ही नहीं है, वो कमजोरी है। आपने भोजन करते हैं, खाना पाना, उल्टियां आ जाती हैं, तो उल्टी आना कमजोरी है कि अच्छा ही है? आ सकती है। बच्चों को उल्टियां आ जाती हैं, छोटे बच्चों को अक्सर ओवर ईटिंग हो जाए तो उल्टी कर देते हैं। बच्चे उल्टी कर देते हैं, तो बच्चों को उल्टी करना चाहिए। अंतर समझो आप। कभी कभी श्रावक की भूमिका में कषाय हो जाती हैं, लेकिन हमारे अभिप्राय में अगर ये बात बैठी हुई है कि कषाय करना अच्छी बात है, चलते चलते गिर सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहोगे गिरना अच्छी बात है। विष्णु कुमार मुनराज मुनि पद छोड़ के रक्षा करने गए। मैं आपसे पूछता हूं,
वे अगर छोड़ के रक्षा करने नहीं जाते तो उनका मोक्ष होता क्या नहीं होता? होता कि नहीं होता? इनके मोक्ष के लिए तो रक्षा करना जरूरी नहीं है। बस 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 वो पॉइंट हमको पकड़ना है, वो पकड़ना है। 5 पांडव बैठे हैं, 3 मोक्ष में जा रहे हैं, उनको रक्षा के भाव नहीं आ रहे हैं। जिनको रक्षा के भाव आ रहे हैं वे मोक्ष नहीं जा रहे हैं, वे स्वर्ग जा रहे हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो गुणस्थान प्रमाण है। आप कॉन्सेप्ट समझ लो। और कॉन्सेप्ट ये है, यहां पर जो चर्चा चल रही है, हम क्रियाएं देख के सर्टिफिकेट ना बांटें किसी को। जबरदस्त क्रियाएं, जबरदस्त क्रियाएं, जबरदस्त क्रियाएं, खुद को भी सर्टिफिकेट मत बांटो। क्रियाएं क्रियाएं, जब भी सर्टिफिकेट बांटना हो परिणामों को बांटना। बोले 10 दिन के उपवास किए, 10 दिन के उपवास किए, देखो समाज में मोटिवेशन करने के लिए तो प्रेरणा दी जाएगी, पारणा कराया जाएगा, तपस्वी तपस्वी तालियां बजाई जाएंगी, लेकिन तुम अपने आप से पूछो, तुम सिर्फ भूखे रहे हो या तप किया है? क्योंकि सिर्फ भूखे रहे हो तो नरक का नारकी 10,000 वर्ष भूखा रहता है, उसे उपवास का फल नहीं लगता है। उपवास का फल तो उसे लगे जो चैतन्य के नजदीक आए। तो क्रिया को, परिणामों को, क्रिया के अनुसार परिणाम नहीं, परिणाम के अनुसार क्रिया। क्रिया परमानेंट फलदायी नहीं, परिणाम फलदायी। कर्म बंधन जो होगा, समझो कर्म सामने से आया, वो बंधना होगा, तो क्रिया देख के बनेगा या परिणाम देख के बनेगा? क्रिया देख के या परिणाम देख के? क्रिया का कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? वैल्यू क्या है उसकी? कर्म बंधन में क्या कीमत है क्रिया की? कर्म सामने से आ रहा है, कर्म सामने से आ रहा है, बराबर है, आ रहा है। तो कर्म जो सामने से आ रहा है वो बंधेगा, परिणाम देख के कि क्रिया देख के? बंद के रिजल्ट को नहीं जोड़ना आपसे। कर्म कैसे बंधेगा? योग से आता है, योग से बनता नहीं है, बनता तो कसाय से है। शास्त्रों में जैसे ही प्रवेश करोगे ना, तो आपको फील होगा कि हमें विचार परिणामों का करना है, क्रिया का ओवरलोड नहीं लेना है। क्रिया गुणस्थान प्रमाण होगी, परिणाम प्रमाण होगी। 4 दिन कुछ खींच तान के 2-4 क्रियाएं आप कर भी लोगे, मोक्ष नहीं चले जाओगे। इसलिए यथाशक्ति शब्द का उपयोग किया है शास्त्रों में। जितना सामर्थ्य हो, जितना सहनन हो, जितनी परिस्थिति हो, उतनी क्रियाएं करो, और परिणाम भावना बहुत ऊंची रखो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सर धा धरे, विश्वास रखो। तो कर्म बंधन के काल में क्रिया मुख्य है कि परिणाम? तो आपका ध्यान क्रिया पे होना चाहिए कि परिणाम पे? अपनी पीठ ठोकना हो तो क्रियाएं देख के या परिणाम देख के? कोई 4 साल से बेड पे पड़ा हुआ है, बोलो इसको शुभ बंद होगा कि पाप बंद होगा? ना मंदिर जाता है, ना माला जपता है। इसका परिणाम है। इतना जैन दर्शन इतना निर्भर करता है कि शरीर अपेक्षा से कुछ भी हो रहा हो, मुझे बंध का भय नहीं। अब निर्भय तो इसी आधार से होगा कि हम बेड पे भी 3 साल से पड़े हुए हैं, तो भी लगातार पुण्य बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते हैं? किस आधार से? क्रिया तो करता ही नहीं है ये। अच्छा, जितना परिणाम है, जितनी सामर्थ्य है, उतनी क्रियाएं भी होंगी। नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, भक्तामृत पढ़ रहा है, याद कर रहा है। कदाचित सामर्थ्य नहीं है पढ़ने की, तो सोच रहा है। सोचने की भी सामर्थ्य कम हो जाती है, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, तो श्रद्धान रखता है। तो बंध तो उससे हो रहा है। तो हम क्रिया से परिणाम तक आए। अब नेक्स्ट बात करता हूं कि असली बंध भाई साहब परिणामों से भी नहीं होता है, अभिप्राय से होता है। अभी नई चीज ले आए पंडित जी, तो हमारे प्राण पियोगे। हम तो फ्री हो गए थे, टाइम टेबल बना लिया था, इतने बजे से सामायिक करनी, इतने बजे से प्रतिक्रमण करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और हम टेंशन फ्री थे, हम सारी क्रियाएं करते हैं। आचार्यों ने से धीरे से बुलाया, इधर आओ, परिणाम। अच्छा अच्छा, अब क्या कहना पता है? क्रिया भी शुभ हो, परिणाम भी शुभ हो, और अभिप्राय अशुभ हो सकता है। क्या गजब! इसको कैसे पकड़ोगे आप? केवल ये मिथ्यात्व तो है, ये जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। क्रिया पूजन की कर है,
और मन भी पूरा लगा है पूजन में, कोई छल कपट नहीं, कोई मायाचारी, मन भी पूरा पूजन में लगा हुआ है। लेकिन अभिप्राय में मैं सेठ हूं, मैं मंदिर का ट्रस्टी हूं, मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये अभिप्राय में बैठा हुआ है। अभिप्राय में बैठा हुआ का मतलब समझे? जैसे अभी आप धर्म सुन रहे हो, आपकी क्रिया अच्छी है, परिणाम अच्छे हैं, मैं एक बात ऐसी कहूंगा, उठ के भागते फिरोगे यहां से। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में हम अपने आप को जो मानते हैं ना, जैसे मैंने व्याख्यान किए और उसमें महिलाओं को नीचा दिखाया मैंने अपने व्याख्यान में, कि महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं वैसी होती, चालू कर दिया, तो फिर पता क्या होगा कि जो जो अपने आप को महिला मानते हैं उनका दिमाग खराब होगा। सही बात। पुरुषों को, हाँ हाँ सही है, सही। अच्छा, हमने उल्टा किया, हमने उल्टा किया, हमने पुरुषों की निंदा शुरू कर दी, पुरुष ऐसे होते हैं, पुरुष वैसे होते हैं, निंदा शुरू कर दी। तो पुरुषों को सब, सारे पुरुष नहीं होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं, सारे को क्यों बोलते हो? ये प्रॉब्लम पता क्यों हो रही है आपको? क्योंकि जो अपने आप को पुरुष या स्त्री, यदि आप आत्मा मान के बैठोगे सभा में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। समस्या यहीं से शुरू होती है कि मैं अपने आप को पुरुष या स्त्री मानता हूं, मैं अपने आप को पंथ संप्रदाय वाला मानता हूं, मैं अपने आप को हिंदू या मुसलमान मानता हूं। तो जैसे ही जो कुछ चलता है, हम युद्ध करने बैठे रहते हैं। हर आदमी आरडीएक्स बांध के बैठा रहता है, कब फट जाए भरोसा नहीं भाई साहब। पंडित जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पंडित जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पंडित जी को अरे भाई साहब, पंडित जी ने जो बोला सो ठीक है, तू क्यों फट रहा है? प्रयोग करके देखना। मैं आपको उस स्तर पर ले जाना चाहता हूं, दुनिया में कुछ भी तमाशा हो रहा हो, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हो या मेरी निंदा कर रहे हो या मेरी आलोचना कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरे वीतरागता को नहीं छीन सकते हो। क्यों? वो मेरा नेचर है, वो मेरा स्वभाव है। तीर्थंकरों ने जो मुझे दिया है ना, ये माल असली माल है। अब ये अगर मिसिंग हो गया तो लड़ते रहो, तलवारें निकालते रहो, धर्म के नाम पर लड़ रहा हूं, धर्म के नाम पर लड़ रहा हूं। भाई तो धर्म के नाम पर पूरी दुनिया लड़ रही है। बोलो कौन नहीं लड़ रहा है धर्म के नाम पे? कितने लोग हैं इस धरती पे जो धर्म के नाम पर दूसरों को मार रहे हैं? अच्छा, वो जो धर्म के नाम पर दूसरों को मार रहे हैं, उन्हें बोले उन्हें पुण्य बनेगा क्या पाप बनेगा? वो अपने लिए थोड़ी मार रहे हैं, वो तो अल्लाह के लिए मार रहे हैं, वो तो महावीर के लिए मार रहे हैं, जो भी अपने अपने भगवान के लिए मार रहे हैं ना। वो तो ताकत चाहिए समझने के लिए विषय, कि तुम महावीर के लिए भी तलवार लेके निकलोगे ना, तो तुम्हें पाप बंधेगा, पुण्य नहीं बंधेगा। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? फिर तो धर्म का नाश हो जाएगा। अरे भाई, अच्छा तुम बचा लो धर्म को, एक काम करो, अभी चौथे के बाद पंचम आ रहा आया है, तुम थोड़ा मेहनत करो तो पंचम से वापस चौथा आ जाए, छठवां नहीं आए। आप बताओ कोई आइडिया आपके पास हो? 24 तीर्थंकर हो गए इस धरती पर, 24 तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर इस काल क्रम को रोकने में समर्थ हुआ है क्या? और तुम हो जाओगे 24 के 24 तीर्थंकर मिलकर चौथे काल को पांचवें काल में जाने से नहीं रोका? तीर्थंकरों के सामने लोग भ्रष्ट होने लग गए थे कि नहीं होने लग गए थे? तीर्थंकरों के घर में पापी पैदा होने लग गए थे। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? कर्मों की व्यवस्था समझो। वे आदिनाथ तीर्थंकर भगवान समोसरण में उपदेश दे रहे हैं और मारीची उनका पोता विरोध कर रहा है। दो तमाचे देते। ये तमाचे देने वाला मार्ग नहीं है प्रभु, अपनी गुस्सा को फेंक दो। शशिकांत भाई, ये वाला न्याय समझ। देखो, हम उस न्याय में पले पुसे बड़े हुए हैं, तो कोई हमें अगर 5 मिनट भी अच्छे से भड़का है तो हम कमर कस के भड़क सकते हैं। अब तो हमें धर्म की रक्षा के लिए लोगों को निपटा नहीं पड़ेगा, हम 2 मिनट में मान जाएंगे। ये मानने के लिए आपको जिंदगी लग जाएगी कि लोगों को निपटाने से धर्म नहीं होगा। क्यों? कितनों को निपटाओगे? अच्छा बताओ, 6-7 अरब हैं, क्या प्लानिंग है? तुम कितनों को मारोगे? अरे लेकिन हमारे मारने से या हमारे सोचने से वे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अगर किसी के सोचने से दुनिया खत्म होती तो अभी तक तो कब की खत्म हो गई होती। कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, ऐसे ही हमारे परिणाम खराब करने से लोगों का नुकसान नहीं होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो।
और यहाँ जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि धर्म के नाम पर भी कषाय मत करो। जो बड़े बड़े मंचों से कभी कभी हम मिस डायरेक्शन हो जाता है ना, एक पंथ दूसरे पंथ के लिए, एक संप्रदाय दूसरी संप्रदाय के लिए, जाओ जाओ। तो कहाँ जाए भाई साहब, अंदर में आओ तो मोक्ष होगा, जाएंगे तो कषाय हो। फिर से बोलता हूँ, एक एक संशोधन करो, करेक्शन। हो सकता है हमारी भूमिका ऐसी है कि हमको गुस्सा आ जाए। जैसे मैं समझो दिगंबर संप्रदाय में मेरा जन्म हुआ है, बचपन से वही अभ्यास किया है, और कोई दिगंबरों के लिए कुछ बात बोले तो आ जाए। तो राग है ना, जितना राग है उतनी कषाय है। कोई श्वेतांबर भाई बैठा हुआ है, उसको श्वेतांबर परंपरा से पला पुसा बड़ा हुआ है, और श्वेतांबर के लिए कोई कुछ बोल देवे तो उसको राग के अनुसार गुस्सा आ सकता है। प्रॉब्लम गुस्सा आने में नहीं है, प्रॉब्लम उस गुस्से को अच्छा मत कहो इसमें है। अभिप्राय ठीक करो अपना। कोई बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, ताव आ जाता है, कोई बात है, आ जाता है, लेकिन उसे अच्छा मत कहो। ऐसा मत बोलो बुखार आना जरूरी है साहब। लोग बोलते हैं गुस्सा करना जरूरी है, कषाय करना जरूरी है। नहीं, आपको, आपकी वीकनेस है कि आपको गुस्सा आ जाती है, गुस्सा करना जरूरी नहीं है। ये जैन दर्शन है भाई साहब, इसका समझना मामला। पूरी दुनिया में पता क्या सिखाया जाता है? क्रियात्मक धर्म, फिर कहीं 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 विचारात्मक धर्म, और जैन दर्शन अभिप्रायात्मक धर्म। क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है? हम नहीं समझ। पूरी दुनिया में गुस्सा कैसे ना करें, इस बात पे सेमिनार चल रहे हैं। गुस्सा ना आए या गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें, और फिर आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको गुस्सा आए तो ठंडा पानी पीना चाहिए, गुस्सा आए तो मौन लेना चाहिए, गुस्सा आए तो जो जो भी बता रहे हैं। मैंने जैनाचार्यों से पूछा कि महाराज गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? तो महाराज बोले देखो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक इलाज है जिससे गुस्सा ही नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? बोलो इलाज करना है कि नहीं करना है? दो दो ऑप्शन है। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि साहब मुझे उल्टी आ जाए, उल्टी आ जाए, उल्टी तो समझते हो ना, वॉमिटिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए? आ जाएगा मतलब समझे, पेट से माल निकला और ऐसे गले तक यहां से आ गया, मुंह तक निकल गया, वो तो उल्टी शुरू हो गई। तो उल्टी आ गई तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी गुस्सा आ गया तो क्या करना चाहिए? अरे उल्टी आ गई तो क्या करना चाहिए? क्या करें? दो चार लोगों को बुलाओ, भाई साहब इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और फिर उनके सामने करो कि मुझे उल्टी आई है। ऐसा ही है। क्या है कॉमन सेंस? कि देखो दवाई तो इसलिए दी जाएगी उल्टी ना आए, फिर भी कदाचित उल्टी आ जाए तो हम क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक एकांत में जाएंगे, कर देंगे, पानी डाल देंगे, सफाई कर देंगे और फील करेंगे नहीं आई जैसा। ये कॉमन सेंस है ना। तो अगर आ ही जाए तो फिर तो एक ही उपाय है कि आप एकांत में जाओ और उल्टी करके आ जाओ। दवाई तो हम इस बात की देंगे तुम्हें उल्टी आएगी ही नहीं। तो ऐसे बोले कषाय आ जाए, कषाय आ जाए, कषाय आ जाए तो क्या करना चाहिए? कषाय आ जाए, गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, आओ आज जरूरी बात करनी है, अर्जेंट मीटिंग है। जब भी आपको अर्जेंट मीटिंग के मैसेज आए ना, और इस टाइप की भाषा लिखी हो, समझना अर्जेंट मीटिंग फिटिंग कुछ नहीं, इसको उल्टी करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप 150-200 लोगों के सामने कषाय करोगे, उल्टी करोगे, तो उल्टी की एक प्रॉब्लम पता है क्या है? कि 100 लोग यहां बैठे हुए हैं और मैंने उल्टी की, तो 2 5 10 लोग ऐसे कमजोर होते हैं, ऐसे सब ठीक चल रहा है, उल्टी को देख के उल्टी आ सकती है। और वो 10 5 ने अगर उल्टी कर दी तो बाकी के 10 20 बैठे हैं, पता चले पूरे हॉल में उल्टी 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 उल्टी। कषाय का भी यही स्वरूप है। यदि आ रही हो तो परिणामों को, मन को शांत करके पाठ करो, णमोकार मंत्र का स्मरण करो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, भक्तामर का पढ़ो। ये जो लोक में भाषा चलती है, हम तो क्या क्या फ्री हो जाते हैं। भैया तुम तो हो जाते हो, उसकी जिसके ऊपर गिरती है उससे पूछो, तुम्हारा तो क्या है। और कोई फ्री भी नहीं होते। नहीं नहीं अंदर अंदर रखने से घुटन होती है, अरे ये फिजिकल नहीं है, ये पर्याय है, एक समय की आके नष्ट हो जाती है।
ये बातें जो चलती है ना, मैंने परसों गुस्सा आई, फिर मैं गुस्सा अंदर अंदर घुट रहा था। अंदर अंदर तो तुम इसलिए घुट रहे थे, तुम गुस्से को लगातार पैदा कर रहे थे। गुस्सा तो एक क्षण में पैदा होता है, एक क्षण में मर जाता है, एक क्षण में पैदा होता है, एक क्षण में मर जाता है। तो कभी क्रोधादि विकार आ जाए तो क्या करना चाहिए? एकांत में धर्म ध्यान करना चाहिए। लोगों के ऊपर क्यों करना? जैन दर्शन क्या कह रहा है कि अपना अभिप्राय ऐसा रखो कि क्रोधादि उत्पन्न ही ना हो। तो बोले क्रोधादि उत्पन्न कैसे नहीं होंगे? कि बोले कि मिथ्यात्व को भगाओ। मुद्दा मिथ्यात्व को भगाओ, फिर गुस्सा नहीं आएगा। कि मिथ्यात्व को कैसे भगाएं? सुनो, मिथ्यात्व का महल किस पे खड़ा हुआ है? 4 पिलर पे। पहले पिलर का नाम एकत्व। क्या है? एकत्व। क्या बोला? एकत्व मिथ्या बुद्धि। आप समझे, मिथ्या बुद्धियों की बात चल रही है। पर में एकत्व, पर तो है ही है इसमें। तो एकत्व बुद्धि एक पिलर का नाम। दूसरे पिलर का नाम है ममत्व बुद्धि। तीसरे पिलर का नाम है कर्तृत्व बुद्धि। और चौथे पिलर का नाम है भोक्तृत्व बुद्धि। अब थोड़ा सूक्ष्म होगा आज 5-10 मिनट के लिए, फिर वापस राहत मिल जाएगी आपको, क्योंकि क्रियाएं जल्दी से समझ में आती हैं, परिणाम फिर भी समझ में आते हैं। ये अभिप्राय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। हिंदी में मैं, पर मैं हूं। एकत्व माने पर मैं हूं। ममत्व माने पर मेरा है। कर्तृत्व माने मैं पर का करता हूं। भोक्तृत्व माने मैं पर का भोगता हूं। बराबर है? उदाहरण से समझा सकते हो। जैसे शरीर के साथ मेरी कौन सी बुद्धि है मिथ्या दृष्टि की? एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि में क्या होता है? मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं हूं। शरीर का हर परिणमन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिणमन है। ये कौन सी बुद्धि है? एकत्व बुद्धि। दूसरी बुद्धि कौन सी थी? ममत्व। तो ये शरीर किसका है? बोले मेरा है। तो शरीर से एकत्व बुद्धि भी है और शरीर से ममत्व बुद्धि भी है। भाई शरीर का कर्ता कौन है? बोले मैं शरीर का कर्ता हूं। तो शरीर से कर्तृत्व बुद्धि भी है। और भोक्तृत्व कौन, भोक्ता कौन है शरीर का? बोले मैं ही भोक्ता हूं शरीर का। तो भोक्तृत्व बुद्धि भी है। तो ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियां जो हैं, असली कारण, कषायों में, क्रोधादि में, कर्म बंधन में, ये हैं। अब इसको और समझो। मैं आपसे बुद्धियों पे चर्चा करता हूं 2 मिनट। कि एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि में क्या है? पर मैं हूं, पर मैं हूं। और ममत्व बुद्धि में क्या है? पर मेरा है। ममत्व बुद्धि में क्या है? पर मेरा है। अच्छा, ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र मैं हूं ऐसी मान्यता होती है जीव को, या वस्त्र मेरा है ऐसी मान्यता होती है? ये मोबाइल मैं हूं ऐसा आप मानते हो, या मोबाइल मेरा है ऐसा मानते हो? दुकान आपकी है या दुकान आप हैं? अब देखना, आचार्य पता क्या कहते हैं? कि ये नाम 2 हैं, काम 1 है। आप बोलते हो दुकान मेरी है, मानते हो दुकान ही मैं हूं। कैसे? कि दुकान में चोरी हो गई, दुकान लूट ली लोगों ने, तो बोलता है मैं लुट गया। लूट कहां हुई? दुकान में। बोलता कौन है? मैं लुट गया। फिर तुम कैसे लुट गए? तुम तो घर में सो रहे थे, दुकान तो 20 किलोमीटर दूर थी तुम्हारी, तुम कैसे लुट गए? बोले मैं और दुकान अलग अलग थोड़ी ही है। समझ में आया मिथ्या दृष्टि की एकत्व बुद्धि? बोलता क्या है? मेरी दुकान। मानता क्या है? मैं दुकान। 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, तो ऐसा लगता है आई एम समथिंग। अब अपनी जो है गाड़ी बढ़िया चल रही है। तो ये जो फीलिंग है मिथ्या दृष्टि की, ये फीलिंग कहां से आ रही है? कि वो पर में एकत्व करता है, पर में ममत्व करता है, पर में कर्तृत्व करता है, पर में भोक्तृत्व करता है। अब मैं आपको यहां लाता हूं। अब आपने ठान लिया शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। आचार्य कहते हैं अब तुम कितना ही धर्म कर लो, धर्म के नाम पर कितनी ही क्रियाएं कर लो, उससे क्या होगा?
पुण्य तो बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो स्वर्ग भी चले जाओगे, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाओगे। स्वर्ग जाके फिर यहीं आ जाओगे। क्यों? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन का काम क्या है? सबसे पहले 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों को खत्म करना। पर मैं नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मैं पर का भोक्ता नहीं हूं। पंडित जी ऐसा जिस दिन मान लेंगे फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। हम तो हम तो सिद्धों जैसे शुद्ध हो जाएंगे कि हाँ, जिस दिन तुम सिद्धों जैसे शुद्ध हो जाओगे उस दिन तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। देखो, दूध में से घी निकलेगा बाद में, पहले भरोसा होगा कि इसमें घी है। तुम सिद्ध बनोगे बाद में, पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे अंदर सिद्धत्व है। भरोसा तो कर वाणी पे, तू परमात्मा है हम नक्की तो कर। अरे यार कहाँ परमात्मा, कहाँ परमात्मा? बोले नहीं, अपनी काम नहीं हो सकता था। केतु भाई, आप भगवान बनेंगे, एक कॉन्फिडेंस आपको है क्या नहीं है? हाँ, पर्याय से देखोगे अभी कहाँ साहब, हमें हमें तो ढंग से धर्म समय नहीं मिल पाता है, परिवार है, फलाना है, ढिकाना जो भी है। लेकिन भाई साहब ये दूध है तो वो उस दूध में घी है, ये श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जिसको ये श्रद्धान होता है वही उसको जमाता है, वही उसको मथता है, वही उसमें से घी निकालता है। घी कौन निकालता है? जिसको भरोसा होता है इसमें घी है। ये माइंस जो खोद रहे हैं, ये कौन लोग खोद रहे हैं माइंस को? जिनको भरोसा है इसमें से सोना निकलेगा। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ वही करता है जिसको भरोसा है कि मेरे अंदर सिद्धपना प्रकट होगा। मैं सिद्धों का बीज हूं। यहीं से कारण परमात्मा में हूं ना, कार्य परमात्मा का। कि आप तो जैन साहब हैं, बोले जैन साहब फैन साहब, सब टेम्परेरी मामला है। आप तो शरीर है नहीं, शरीर नहीं है, संयोग नहीं है, धनवान नहीं है, निर्धन नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बदसूरत नहीं है। उनके लिए कल वाला जवाब है, ये सब हैं पुद्गल के खेल, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी चर्चा नहीं है। आज तो आपने भाई साहब क्या वाणी बोली, ये मैंने नहीं बोला है, ये भाषा वर्गणा का परिणमन है, मेरी उपस्थिति थी बस, मैं उसका कर्ता। अच्छा, जब मैं उसका कर्ता नहीं हूं तो ना मुझे अहंकार होगा ना गिलानी होगी, क्योंकि श्रोता 2 तरह के होंगे, या तो तारीफ करेंगे या निंदा करेंगे, बीच में नहीं रह सकते भाई। या तो कहेंगे अरे यार ये तो वही लोग हैं, ये तो ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, या कहोगे गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। तो आप निंदा करो या प्रशंसा करो, मैं दुखी नहीं होऊंगा, सुखी नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाणी का परिणमन है ये मेरा परिणमन नहीं है, ये भाषा वर्गणा का परिणमन है प्रभु। इसकी निंदा प्रशंसा मेरी निंदा प्रशंसा नहीं। बाहर जो गाड़ी खड़ी है आप उसकी तारीफ करो या निंदा करो, बोले मुझे क्या फर्क पड़ना है? क्यों? मेरी नहीं। कोई कोई शरीर की तारीफ करे या शरीर की निंदा करे, आपको दुखी होना चाहिए? नहीं। क्यों? मेरा नहीं है। मेरा नहीं है ये मानोगे तो सुखी हो पाओगे, मेरा है मानोगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आपको विकल्प सताता रहेगा, मैं गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, ठिगना हूं, मोटा हूं, पतला हूं। आचार्यों ने एकदम फ्री कर दिया, तुम ये हो ही नहीं, तुम जो हो वहां इन सब चीजों का कोई काम नहीं। क्या करें? कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो टेम्परेरी 2 दिन के लिए किसी धर्मशाला में रुकते हैं और 1000 विकल्प करते हैं, ये धर्मशाला ऐसी है, ये खिड़की ऐसी है, ये दरवाजा ऐसा है, ये पंखा ऐसा है। ज्ञानी कहते हैं 2 दिन के लिए आए हो ना तो क्यों दिमाग लगाते? ख्याल में आया? ये शरीर ऐसा है, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर 2 दिन के लिए है, क्या को पंचायत करो? कौन सा अनंत काल रहना है इस शरीर में, इन संयोगों में? इसलिए मोक्ष मार्गी जीव को कोई भी शत्रु मित्र नजर नहीं आते, कोई दुश्मन नहीं है उनका, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जैन शास्त्रों को पढ़ोगे तो विधर्मियों से भी द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते। क्यों घृणा नहीं करते हैं? एकत्व ममत्व कर्तव्य बुद्धि का अभाव, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तत्वार श्रद्धान के बल से। जिस दिन आपको एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि चली गई उस दिन मिथ्यात्व का आना रुक गया, और मिथ्यात्व का आना रुक गया माने संवर हो गया। कर्म आ रहे थे ना,
क्यों आ रहे थे? जैसे 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 अभिप्राय में कोई चोर था, वो मंदिर में घुसा, मंदिर में घुस के बोला जय हो जय हो जय हो, तो क्रिया से भी उसने जय हो की, और वाणी से भी जय हो की, लेकिन उसे पुण्य बनेगा कि पाप? पाप। क्यों? अभिप्राय में चोर है। ऐसे ही तुम व्रत करो, उपवास करो, सील करो, संयम करो, दान दो, मुझे करोड़ों रुपया दे दो, जो पंडित जी ले जाओ, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, सुनो, आप अगर परद्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं छोड़ेंगे तो आपका मोक्ष शुरू नहीं होगा। तो बोले मेरे करोड़ रुपए बेकार चले गए क्या? नहीं नहीं, बेकार नहीं जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे, थोड़ा पुण्य बंधेगा, उससे आपको थोड़े और अवसर मिल सकते हैं सत्समागम के, सत्साहित्य के। इस निकृष्ट जैसी जगह पर भी आपको जिन धर्म मिल रहा है, मतलब कोई किसी जन्म में आपने क्या सुकृत किए होंगे बोलो? जब यहाँ मंदिर निर्माण हुए, आपने प्रतिमा के लिए समझो कि यहाँ भगवान होना चाहिए, तो वो आपको भाव आया ना, उस एक भाव से इतने लोग लाभ ले रहे हैं ना, और वो भाव ना आए तो कैसे नहीं आएगा? इतने पुण्यशाली जीव बैठे हैं तो आपको पुण्य कमाने का भाव आएगा। पूरा विश्व कैसे चल रहा है भाई साहब? ऐसे ही चल रहा है। किसके भाग्य से किसको क्या भाव आते हैं? गणित समझ में आ गया? किस बात का गणित? हमें मोक्ष मार्ग के नाम पर सबसे पहले क्या करना होगा? अपना इंटेंशन ठीक करना होगा, अपना अभिप्राय ठीक करना होगा, अभिप्राय में सहिष्णुता लानी होगी, अभिप्राय में निर्मलता लानी होगी। ये भेदभाव, ये पंथवाद, ये सब चीजें एकदम साइड में हो जाएंगी। आप किस पंथ से हैं ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आप किसी से घृणा तो नहीं करते हो। घृणा कर रहे हो माने मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहे हो सकता है आप सही हो, सामने वाला गलत हो, फिर भी घृणा नहीं करनी। अरे यार पंडित जी क्या बात हुई यार, ये इसी का नाम तो शांति और समता है। मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे मत अलग अलग हैं। आचार्य क्या कहते हैं? मत अलग अलग होने पर भी बोलो कषाय रहित जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चूंकि हमारे मत अलग हैं तो दिन भर भौंके हम, सॉरी दिन भर कषाय करें, दिन भर चीखें चिल्लाएं, मत अलग है, मत अलग है, मत अलग है, मत। विभिन्न मतों के बीच में भी हम शांति और समता से रह सकते हैं कैसे? कब? जब आप उसे आत्मा देखें तब, जब अपने आप को आत्मा देखें तब। अपने आप को अगर शरीर से देखेंगे, संयोगों से देखेंगे, आप टीवी पे कोई भी समाचार सुनेंगे ना, आप ऐसे ऐसे समाचार सुनते हो ना, ऐसे ऐसे नाचते हो, नाचते हो ना, परेशान होते हो। जैसे टीवी पे कोई समाचार आया और उसमें समझो जो बोला उसने सेठों की बुराई की, और आप अपने आप को सेठ मानते होगे, व्यापारियों को उसने भाषण दिया, व्यापारी चोर होते हैं, ऐसा बोल दिया उसने, आप टेंशन में आ जाओगे क्योंकि अपने आप को व्यापारी मानते हो। अगर अपने आप को आत्मा मानोगे तो नथिंग। पूरी मोक्ष मार्ग की यात्रा निर्मल निर्भर यात्रा है। परिस्थिति बस मैं क्या कर रहा हूं ये जुदी बात है। अभिप्राय में एक परमाणु भी पर द्रव्य का मेरा नहीं है। जो भी परिणमन हो रहा है मैं उसका ज्ञाता हूं, करता नहीं। जानन हार जनाए छह, जानन हार जनाए छह, जानन हार जानने में आ रहा है, बस जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, करने के नाम पर जैसा है वैसा मान लो। कैसा है? सात तत्वार्थ। जीव अजीव नहीं है, अजीब जीव नहीं है। पहला, जीव अजीब नहीं है और अजीब जीव नहीं है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन है शशिकांत भाई? दिगंबर हैं कि श्वेतांबर हैं? धनवान है कि निर्धन है? गोरे हैं कि काले हैं? पैसे वाले हैं कि गरीब हैं? ये सब फॉर्मेलिटी हैं। बोले मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। जिस क्षण आपने इस अभिप्राय से बात की उस दिन कषाय खत्म, और ये अभिप्राय नहीं रखा तो भाई साहब आग लगी है। निकृष्ट काल है ना, निकृष्ट काल है। कहते हुए भी आश्चर्य होता है, पूरे विश्व की आग जो धर्म दर्शन बुझा सकता है
वो अहिंसामयी परमो धर्म जिन शासन है, पूरे विश्व की आग बुझा सकता है, ऐसी इसकी विचारधारा है। लेकिन दुख होता है इस निकृष्ट काल में, वहां भी आग लगी मिल जाएगी आपको। ये इसका है, उसका है, सही नहीं है, ये गुरु सही नहीं है, वो सही नहीं है, एक दूसरे चलेगा। इससे अपने परिणाम खराब मत करना, मैं ये मैसेज दे रहा हूं। उसको भी आप ज्ञान दर्पण में जान लेना। बोले ये काल सत्य है, काल सत्य, इस काल में ऐसा ही होता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये एक मेरे से अब बोले तो हमको कहते हो शांत रहो, तुम्हारे गुरुजी तो लड़ते रहते हैं आपस में। उसने 2 वीडियो दिखा दी हमें लड़ने वाले, एक दूसरे के अगेंस्ट। तो देखो मैंने कहा, गुरुजी जो भी XYZ लड़ रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बराबर है। ऐसा होगा कि मैं गलत काम करूं और उससे आप नरक चले जाओ। जैन दर्शन निर्भर रखता है हर जगह, अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। मैं भावना भाता हूं विश्व में किसी को कषाय ना हो, मैं भावना भाता हूं विश्व में किसी को कषाय ना हो, और मैं ध्यान रखूंगा किसी को कदाचित हो तो हो, मुझे ना हो, क्योंकि फल तो मुझे मेरा भोगना पड़ेगा, किसी का नहीं भोगना पड़ेगा। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, अनंत यात्रा है। इसलिए 7 तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन जिसको है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जिसके पास सम्यक दर्शन और ज्ञान है उसकी परिणति निर्मल होगी, उसकी अनंतानवंदी कषाय चली जाएगी, आगे अप्रत्याख्यान जाएगी, प्रत्याख्यान जाएगी, स्वयं उसका चारित्र भी निर्मल होगा। इस तरह से मोक्ष मार्ग की यात्रा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है। इस विषय पर हमने चर्चा की। किसी के कोई प्रश्न हो तो 1 आध 2 ले सकते हो। 5-7 मिनट मुझे और कोई बात बतानी है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम। आप जो सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, एक तो है सम्यक चारित्र और एक साधु का चारित्र है, 6 गुणस्थान वाला, उसमें डिफरेंस क्या है? श्रावक का चारित्र और साधु का चारित्र दोनों ही, यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो वो चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। एक बात, साधुओं का चारित्र बहुत पावरफुल है, अधिक मात्रा है। जैसे हम अंदर से तो विशुद्धि बढ़ गई है, अनंतानुबंधी कषाय चली गई श्रावक को, लेकिन अभी चारित्र नहीं आया। अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई तो एक देश चारित्र आया, अणुव्रत हो गया। प्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली गई तो महाव्रत हो गया। मैंने साधुओं ने जो संकल्प लिए हैं क्रियात्मक रूप से, हिंसा छोड़ी। कैसे हिंसा छोड़ी? सब महाव्रत है, किसी भी तरह से हिंसा नहीं करेंगे, ना खुद हिंसा करेंगे, ना किसी और से हिंसा करवाएंगे, ना हिंसा की अनुमोदना करेंगे। तो वो 5 पाप महाव्रत रूप हैं, निर्मल चारित्र है वो। श्रावक की मजबूरी है, वो एक देश, वो करना छोड़ सकता है, कदाचित करवा सकता है, वो करना छोड़ सकता है, कदाचित उसको अनुमोदना हो सकती है, तो उसने एक देश है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने सर्व जीवों के प्रति त्याग कर दिया। श्रावक एक देश, घर गृहस्थी है, भोजन करेगा, व्यापार करेगा, गाड़ी चलाएगा, सावधानी रखते हुए भी, ना चाहते हुए भी कुछ हिंसा तो उससे होगी। तो वो जो है ना चारित्र, चारित्र तो है लेकिन उसकी मात्रा कम है। साधुओं के चारित्र की मात्रा अधिक है, श्रावक के पास जो चारित्र है उसकी मात्रा कम है चारित्र ही। थैंक यू। पंडित जी, मेरा प्रश्न है, कल आपने जो एक बात बताई कि निरोध से जीव प्रगति करते करते हुए पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय बनता है, तो वो जीव तो घोर मिथ्यात्व रहता है जब तक सम्यक तो नहीं आता। तो उस जीव की प्रगति कैसे होती है, एक ही निरोध से लेके एक इंद्रिय से? कि वो हमेशा घोर मिथ्यात्व, हमेशा पाप का ही अनुबंध बंद करता रहेगा, तो जीव की वो प्रगति कैसे हो जाती है? जो अपन ने पहले दिन शायद बात की थी या दूसरे दिन, परिणाम 3 प्रकार के कहे थे, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। तो सम्यक दर्शन से पहले शुद्ध परिणाम तो नहीं है, तो 2 परिणाम बचे, अशुभ और शुभ। तो 4 गति में जितनी भी परिस्थितियां हैं वे पुण्य और पाप के फल रूप हैं। तो मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग में चला जाता है, तो स्वर्ग में जाना कोई बड़ी चीज नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसने पुण्य भाव किया, प्रशस्त भाव किया, स्वर्ग में चला गया। मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी हो जाता है क्योंकि उसने शुभ भाव किया। जैन कुल में भी आ जाता है, शुभ भाव किया। तो शुभ भावों से, प्रशस्त भावों से उसे ये परिस्थितियां अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। अशुभ भावों से, पाप भावों से परिस्थितियां खराब खराब मिल जाती है, नरक में पहुंच जाता है, मार पड़ती है। तो परिस्थितियां जो मिल रही हैं वो शुभ अशुभ भावों से मिल रही हैं, और हर जीव शुभ अशुभ भाव करने में समर्थ है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो। चाहे कितने कुत्ते ऐसे होते हैं सामान्य शांत बैठे रहते हैं, मंद कषाय में जीवन निकाल देते हैं पूरा, पुण्य बांधते बांधते। कितने कुत्ते ऐसे होते हैं बात बात पे नाराज होते हैं, घर वालों को ही खा ले में। तो ये हर जीव की अपनी अलग परिणति है, तो शुभ अशुभ रूप परिणति तो वो भी पुण्य भाव करते हैं, एक इंद्रिय निगोद के जीव, एक इंद्रिय के जीव। बिल्कुल करते अच्छा। हैं। तो सिर्फ जैनियों ने ठेका थोड़ी लिखा है पुण्य भाव का। प्राण परिणाम जीव मात्र को होते हैं, परिणाम जीव मात्र को होते हैं। और ये तो समझो, ये भी काल दोषी है कि जैन शब्द एक जाति में कन्वर्ट हो गया है। Convert हो गए। जैन शब्द तो जिसने इंद्रियों को जीतने की ओर बढ़ा, जिसने अपनी आत्मा की निर्मलता की ओर बढ़ा, जिसने कषायों का अभाव करने की, वो जैन है। इसलिए आप पास्ट में झांक के देखोगे, जैन समाज में, जैन संप्रदाय में, जैन विभाग में हर जाति पंथ संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि सारे विचार, तीर्थंकर क्षत्रिय थे। हाँ, तो इसमें ये तो सब परिस्थिति बस है। प्राणी मात्र का धर्म है, एकलौता धर्म जो विश्व के सब प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है। धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, एक मैं चैट बॉक्स देख लूं, कुछ लिखा है कि मैं ध्यान नहीं दिया, पता। कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ, एक सेकंड, कहाँ चला गया? परिणाम और अभिप्राय, क्रिया परिणाम अभिप्राय का एग्जाम्पल। ये क्रिया परिणाम अभिप्राय का ही एग्जाम्पल दिया ना। पूजा की क्रिया, पूजा के भाव, और मैं आत्मा हूं, ये अभिप्राय। तो अभिप्राय में जो बात है वो परिणाम, और परिणाम में जो बात है वो क्रिया। तो क्रिया मन वचन काय के रूप है, परिणाम मन रूप है, अभिप्राय सम्यक दर्शन का, श्रद्धा गुण का काम है। श्रद्धा गुण में परिवर्तन, वो अभिप्राय का परिवर्तन है। चलिए, मैं अब आपको 2-5 मिनट मैं आपके लेना चाहूंगा, उसके बाद अपन पूरा समापन करेंगे सभा का। और वो 5 मिनट इसलिए ले रहा हूं कि सब लोगों को आशा है मोटिवेट हुए होंगे कि स्वाध्याय करना चाहिए, जिनवाणी पढ़ना चाहिए। जिनवाणी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारे कल्याण में हेतु बन सकती हैं, हमारा कल्याण हो सकता है। तो सतपथ फाउंडेशन नागपुर ये प्रयास कर रहा है ग्लोबली कि सब लोग स्वाध्याय करें, जिनवाणी पढ़ें और उसमें भाग लें। वो दो स्तर पर काम कर रहा है, लोकल में भी काम कर रहा है और बाहर भी काम कर रहा है। लोकल में पाठशाला चलाता है और बाहर में सतपथ प्रश्न मंच का आयोजन करता है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा थोड़ा वीडियो आपको दिखाता हूं, तो आपको रफ आइडिया लग जाएगा, फिर मैं आपकी उसकी समरी बता दूंगा। ठीक है। नहीं यार, ये वॉल्यूम नहीं है।
लगाओ ना। मेरा जीवन है शुद्ध अध्यात्म को और रत्नात्रय स्वरूप धर्म का विश्व भर में प्रचार करने का उद्देश्य लिए ही मैं बढ़ रहा हूँ। ये नेत्रहीन है, लेकिन इनके ज्ञान चक्षु जागृत है। शुभ नाम आपका? अरहम अरहम। जो निकट भव्य शिष्य शास्त्रा, कंप्यूटर जी शास्त्रा लॉक कीजिएगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य के अलावा और क्या क्या याद है आपको? सूत्र छेड़ारा विष्णुपदेश द्रव्य संग्रह भक्त ब्रह्मचर्य लोक संभावित कारण पाठन। कितनी उम्र है आपकी? 7 7 वर्ष के हैं और पूरे श्लोक याद हो गए। इसके अलावा क्या याद है आपको? विष्णुपदेश भक्तावर 80 वर्ष की उम्र है। क्या उम्र है आपकी? शास्त्र अभ्यास का अवलंबन है। दुनिया की कोई ताकत इन्हें दुखी, बेचैन, आकुलित नहीं कर सकती है। इतना अमेजिंग लग रहा है। शपथ किस चिड़िया का नाम है? ये विशाल सभा मंडप, जगमगाता हुआ मंच और ये गरिमामय कार्यक्रम, क्या यही है शपथ? यह तो शपथ का परिणाम है। शपथ तो वह है जो पूरे वर्ष भर हजारों साधर्मियों को निरंतर स्वाध्याय में मग्न रखता है। अपने इन्हीं नियत उद्देश्यों को लेकर तो अभी ये जो कोशिश है वो आवाज आप तक आ रही है? शायद यहाँ से चेंज। हाँ जी, सतपथ द्वारा ये कोशिशें की जा रही हैं कि पूरा विश्व जैन धर्म के मूल ग्रंथों का पठन पाठन करें। सतपथ प्रश्न मंच का आयोजन किया जा रहा है। इस बार समय सार है ग्रंथ। यदि आप समय सार को आद्योपांत पढ़ना चाहते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। 6 भाषाओं में क्लासेस चल रही हैं समय सार के ऊपर: इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़ और तमिल। आप जिस भाषा में सुनना चाहें सुन सकते हैं। हेल्पलाइन है उसकी 6 भाषाओं में, और आपको बुकलेट दी जाएगी। ओपन बुक एग्जाम है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, शास्त्र रखना है, शास्त्र का पीडीएफ आपको ओपन करना है और शास्त्र पढ़ते जाएंगे, आंसर आपको मिलते जाएंगे। 10 लक्षण के बाद इसके स्पेशल एपिसोड शुरू होंगे एवरी सैटरडे, तो आप वहां से भी जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें हमने छोटा सा प्राइज भी रखा है जो लोग पार्ट लेंगे। फर्स्ट प्राइज जो है 10 ग्राम गोल्ड कॉइन है, सेकंड प्राइज 8 ग्राम, थर्ड प्राइज 5 ग्राम, 2-2 ग्राम के 10 और 1-1 ग्राम के 20, 33 सोने के सिक्के हैं और 975 सिल्वर कॉइन है। इस तरह से 1008 पुरस्कार हैं। ये जैनियों का क्रिकेट है, ये तात्विक क्रिकेट है, धार्मिक टूर्नामेंट ओलंपियाड जैसा है कि पूरा विश्व इसमें भाग ले और महसूस करे कि जिन शासन बहुत अभूतपूर्व है। इस तरह से हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप भी सब इसमें भाग ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। कोको बाबा जय जय भाई साहब। ठीक है, आपने कौन सी 6 भाषा बोली? गुजराती, हिंदी, गुजराती है, हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, इंग्लिश है इसमें? और तमिल। इंग्लिश और तमिल। यस। मूल भाषा उसकी जो है पुस्तकी वो हिंदी है, और दूसरी भाषाओं में उसके क्लासेज, हेल्पलाइन, विद्वान सपोर्ट वो सब आपको मिलेगा। और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो आपको लैंग्वेज का बहुत वेरियर नहीं आएगा। और अभी तो एआई इतना चल रहा है कि आप सपोर्ट आपको मिल ही जाता है। तो
विपिन जी, ये जो हेल्पलाइन वगैरह है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे प्राप्त होगी? जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको एक बुकलेट मिलेगी। बुकलेट में हेल्पलाइन लिखी हुई है, लैंग्वेज के हिसाब से फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप व्हाट्सएप से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जरूर। थैंक यू, आभार। और एक सूचना और, मैंने जिनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं और जो चाहते हैं कि जैन धर्म में हम टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग करें, तो अभी बम्बई के साधर्मियों ने मिल करके vitragvani.com जो चलाते हैं, कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट, उसके माध्यम से श्रुतम AI लॉन्च की गई है। नाम है श्रुतम AI। श्रुतम AI.com पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ भी जैन दर्शन से संबंधित प्रश्न हो आप वहां पूछ सकते हैं और वहां से आपको प्रामाणिक जवाब मिलेंगे। देखो, आज भी आप चैट जीपीटी से पूछते हो या जेमिनी AI से पूछते हो तो ग्लोबली जहां जो उपलब्ध है डेटा वहां से वो आपके सामने प्रस्तुत करता है और नीचे लिखता है हो सकता है दी गई जानकारी गलत हो, कृपया आप इसे वेरिफिकेशन कर लें। लेकिन ये जो श्रुतम AI है, इस श्रुतम AI में आपको जैन ग्रंथों के आधार से ही जवाब आएगा। तो इसका दिया हुआ जवाब ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं और साथ में रेफरेंस ग्रंथ भी दिया जाएगा कि ये जवाब जो दिया गया है इस ग्रंथ के आधार से जवाब दिया गया है। इसकी जो डिटेल वीडियो है मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और समय के साथ हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। कभी कोई आपको ऐसा लगे स्वाध्याय करते करते कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या ये बात किस ग्रंथ में लिखी है पता नहीं चल रहा, तो आप इस श्रुतम AI में जाके संपर्क कर सकते हैं और अपने ज्ञान को निर्मल कर सकते हैं, क्योंकि वहां से जो जवाब आएगा वो जवाब प्रामाणिक जवाब आएगा, जैन ग्रंथों से ही जवाब आएगा और साथ में ग्रंथ का नाम भी देंगे कि इस ग्रंथ से ये जवाब दिया गया है। ये सूचना हमको खास देनी थी और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। श्रुतम AI.com ग्रुप में उसका वो भेज देंगे अपन, है ना, वीडियो जो बनाया है। तो हमने इतने दिनों से पंडित जी विपिन कुमार शास्त्री जी का स्वाध्याय सुना और आप लोगों ने इतने उत्साह से पार्टिसिपेट किया, तो मैं आप सबका खूब खूब आभारी हूँ। और हमारा प्रयास यही रहा कि किसी भी स्थिति में आप जिनवाणी से जुड़े, आप जैन धर्म से जुड़े, और जुड़ने का कारण क्या है कि अपना कल्याण करें। और हमारा विषय जो विपिन जी शास्त्री ने आप सबको बताया वो इतना सरल था कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, उस मार्ग पे हम कैसे चल सकते हैं और हम कैसे मोक्ष में जा सकते हैं। इतनी बड़ी जो जिनवाणी है ना, उसको 4-5 सेशंस में समेटना, तो ये काफी कठिन टास्क था। और इनको इतने न्यायपूर्वक और इतनी सरलता से विपिन जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो मैं उनका खूब खूब पूरे संघ की ओर से खूब खूब आभारी हूँ। और अगर मेरी ओर से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं बिल्कुल क्षमा याचना चाहता हूँ। और ऐसा ही लाभ हमें आने वाले भविष्य में भी मिलता रहे। और डेफिनेटली हम यहाँ पे जो प्रश्न मंच है, सतत प्रश्न मंच से हम जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक ज्योति है, एक जर्नी है, राइट। अगर हम जर्नी में जुड़ेंगे नहीं तो हम कभी भी मोक्ष में नहीं पहुंच पाएंगे। और हमें तो मोक्ष की बस पकड़नी है। जो विपिन जी ने बता दिया कि मोक्ष की बस कहाँ से मिलेगी, तो डेफिनेटली हम ये क्विज में जुड़े, अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। हाँ, इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। नौ शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
I think Vipin ji asked to count 9 cards. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ बहुत बहुत आभार जैन संघ ऑरलैंडो का। और पिछले 5 दिनों में 4 दिनों में जो भी अपनी चर्चाएं चली हैं और पूरी कोशिश की है पवित्र भावना से कि जिन शासन चलता रहे, हम और आप सब इस मार्ग में लगे रहें। फिर भी कोई किसी भी तरह की देवसा गुरु की आसाधना हुई हो तो समिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा और सब शुभकामनाएं आप सबको मोक्ष मार्ग की यात्रा पर चलते रहें। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जयेंद्र। धन्यवाद everyone. Thank you Vipin ji. Okay. We're gonna finish over here. जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय जय सिद्ध सलाम। बहुत आभार। कृतज्ञ। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।